Good morning, students. Today we are going to design retaining wall as we have done in the previous numerical, the design of retaining wall. So we are going to continue the same retaining wall design as it was incomplete in this previous numerical. So in continuation to that numerical, we are going to start as we have dealt there with all the stability condition checks. We have done so far the stability checks for the retaining wall. Now after that we have to do designing of the each component of retaining wall. Means हम लोगों ने सारे रिटेनिंग वॉल के कंपोनेंट्स की स्टेबिलिटी चेक, स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग और सॉयल प्रेशर सब कुछ चेक कर लिया था. उसके बाद अब हमें हर कंपोनेंट का रिटेनिंग वॉल के डिज़ाइन करना था. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिज़ाइन stem of the retaining wall. Stem, you all know, this portion of retaining wall is called as stem. So we are going to design this stem of the retaining wall of our previous numerical. So as we have already calculated capital D, so you can see here the depth required for a stem is already checked while assuming the preliminary dimensions. जब हम लोगों ने preliminary dimensions निकाले थे वहाँ पर D हमने already निकाल रखा था. D was capital D was 350 mm, small d was 350 minus 60 mm of clear cover was provided there. So small d was 290 mm. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द बेस ऑफ द स्टेम, ये भी हमने प्रिलिमिनरी डायमेंशंस जब निकाले थे स्टेम के तो वहाँ पर निकाला था 155.73 किलो न्यूटन मीटर. ये चीज़ें हम पहले ही निकाल चुके थे. प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, इसके पहले वाला जो पार्ट 1 का वीडियो है उससे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. Now what we have to do, we have to calculate area of steel required in the stem part. So for area of steel required in stem part, we know that for bending moment, given bending moment, we have formula 0.87 FYAST D minus FYAST upon FCK into B into D. इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम AST निकालते आए हैं हर जगह, स्लैब में भी और बीम्स में, कॉलम्स में, हर जगह इसको यूज़ करते रहे. सो वी विल बी यूजिंग द सेम फार्मूला ऑफ बेंडिंग मोमेंट टू कैलकुलेट AST by putting all the values. We will calculate AST from here. From here we got AST required at 1693. We have provided 16 mm diameter bars. So each bar has cross sectional area 201 having spacing 118 mm. So you can calculate all these things very easily as I have told already in various numericals. So I am not going to in depth with this all. You can calculate these all by taking the screenshot and calculating. So here we have provided 16 mm diameter bars of Fe415 at the rate 100 mm center to center. So this is the area of steel provided in stem. Now what we will do, distribution steel. इन मेन बार्स के साथ साथ जो साइड में डिस्ट्रीब्यूशन बार्स पड़ेंगे इन मेन बार्स को होल्ड करने के लिए उनको कैलकुलेट करेंगे. तो सो एज पर आवर कोडल प्रोविजन सेज the distribution steel is 0.12% of cross section as we already know. So we'll take it as AE equals to 0.12 upon 100 into 1000 into cross sectional area. अब जो हमारा स्टेम है वो हमने ऐसे प्रोवाइड किया था, ऊपर का पोर्शन 150, नीचे का पोर्शन 350, कुछ इस तरीके का बनाया हुआ था हमने. सो विल बी टेकिंग एवरेज ऑफ दीज टू एज द thickness. So we'll take average thickness of this to 150 plus 350 by 2. So from here we get AC as 300 mm square. So we'll use 8 mm diameter bars. So spacing here it is calculated. We'll get 165.5 mm spacing. So we have provided distribution steels of 8 mm bars of Fe415 at the rate 150 mm center to center on the inner face of the stem as distribution steel. Tick. Now we'll do check for shear. As we know, we have to do check for shear for this. So the critical section for shear is at the distance D from the base of the stem. क्या होता है, जो हमारी रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल के स्टेम के बेस से D स्मॉल d डिस्टेंस पर ये क्रिटिकल सेक्शन मानी जाती है फॉर shear. ये डिस्टेंस D होगा. तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी थी, ये पूरी हाइट थी 4.7 मीटर गिवन, उसमें से स्मॉल डी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सेक्शन हमें मिल जाएगा. इस सेक्शन पे कितना शियर फोर्स होगा वो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रायंगुलर लोड, ये पूरा ट्रायंगुलर लोड ऐसे बना हुआ था के गामा एच इंटू एच. तो ये ट्रायंगुलर लोड जो होगा ये इस सेक्शन का शियर फोर्स हो जाएगा, यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन पर शियर फोर्स. सो वी कैन सी हेयर
सी टोटल हाइट हमने ले लिया क्रिटिकल सेक्शन पे 4.7 माइनस डी यानी 0.29 सब्ट्रैक्ट कर दिया नीचे से तो 4.41। अब इस क्रिटिकल सेक्शन पर शियर फोर्स होगा उस ट्रायंगल का एरिया मीन्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस विल बी 1 k इंटू गामा इंटू एच, k इज 1/3 इंटू गामा इज 18 इंटू h इज 4.41 एंड टोटल हाइट इज 4.41। यू कैन सी लाइक दिस ट्रायंगुलर वे में ऐसे बनेगा। ये हाइट 4.41 होगा, ये बेस जो होगा k इंटू गामा इंटू एच मीन्स 1/3 इंटू 18 इंटू 4.43 होगा ये। तो ये बेस इंटू हाइट इंटू 1/2 विल गेट दिस शियर फोर्स। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Now after calculating the shear force, we'll factorize it by multiplying with 1.5 so that we can get factored shear force. So we have got the value of VU will be 87.52. Now we can do the shear check, as you already know how to perform the shear check by calculating VU upon BD, then tau V, then P%, then tau V and tau C, comparing tau V and tau C from the table and the calculated value. Here we can see tau C is less than tau V, hence it is okay, the design is safe in shear. Okay, just a minute, here tau C is greater than tau V, hence the stem is safe in shear, stem हमारी shear नहीं करेगी। Okay, now moving further we have design of heel slab। जो ये पोर्शन है हमारा, दिस इज कॉल्ड एज BCDE इज कॉल्ड एज heel slab। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस heel slab। द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द heel slab वाज ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज वी नो। इस पूरे स्लैब के नीचे का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन P मीन और P max हमने प्रीवियसली निकाला था। P मीन वाज 17.83 and P max was 124.83। So now what we do here, we will calculate the pressure distribution at this section BE and this section IF। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस पोर्शन पे हमने इसको आगे बढ़ा लिया, ये एक्स डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन। अब इस पॉइंट पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ये वैल्यू होगी, ये निकालेंगे, और इस पॉइंट पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की ये वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे। सी जो हमारी ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, इसको अगर हम देखें तो ये एक रेक्टेंगल की तरह से होगा जिसकी विड्थ 17.83 इधर भी होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये एक ट्रायंगल होगा। दो कंपोनेंट्स होंगे इसमें, मींस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो ये 17.83 होगी, फिर यहाँ की वैल्यू ये इसमें ऐड करनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ भी 17.83 प्लस ये वाली वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो इन दोनों सेक्शन पे हम वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यू कैन सी 17.83 जो मैंने बताया रेक्टेंगल, ऊपर का ये पोर्शन 17.83, बाकी नीचे का पोर्शन जो होगा इस ट्रायंगल का पार्ट, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल रूल। मींस हम इसको इस तरीके से देख, ट्रायंगल है हमारे पास ये, तो दिस टोटल अपॉन दिस विल बी इक्वल्स टू दिस टोटल अपॉन दिस वैल्यू, isn't it? From here we have calculated this. You can do this calculation to find this value. Again you can do similarly apply this for here, you can calculate this value by similar triangle rules. Now see, वेट ऑफ द अर्थ सपोर्टेड ऑन हील स्लैब। जो हील स्लैब है हमारा, इसके ऊपर जो मिट्टी भरी हुई है उसका वेट कितना होगा। मिट्टी का जो डेंसिटी है 18 इंटू 4.7 जो हाइट है सॉइल की, सो विल गेट 18 इंटू 4.7 84.6 किलो न्यूटन पर मीटर। सेल्फ वेट ऑफ दिस हील स्लैब, जो ये हील स्लैब है इसका खुद का जो वेट होगा वो होगा 25 इंटू बी इंटू डी। 25 इंटू थिकनेस वॉज 0.5 इंटू पर मीटर 1, so we get 12.5 kilonewton per meter. So the total load on this heel slab will be sum of these two, 97.1 kilonewton per meter. Now maximum bending moment at this point B। अब इस B पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट देखें हम तो कितना होगा। एक तो इस सॉइल की वजह से इस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट, इधर से इसकी तरफ, इधर से इसकी तरफ बेंडिंग मोमेंट, और दूसरा जो बेंडिंग मोमेंट होगा ये जो नीचे से प्रेशर है वो इसको इधर की तरफ बेंडिंग मोमेंट प्रोवाइड करेगा। मीन्स इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, सो विल गेट रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट। सो यू कैन सी हेयर द रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट हेयर एट दिस स्लैब विल बी 97.1 into
दिस वैल्यू विल बी ऑफ यूडीएल कमिंग फ्रॉम अपसाइड, जो एक ऊपर से यूडीएल के फॉर्म में ये डब्ल्यू आ रहा होगा, तो इसकी वजह से WL²/2 कर देंगे, ये वाली वैल्यू निकल गई, माइनस ये नीचे का 17.83 का ये जो रेक्टेंगल बन रहा था यहाँ पर, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, फिर अगेन माइनस करेंगे ये नीचे जो इसके ये ट्रायंगुलर लोड बन रहा था, तो ये ट्रायंगल का लोड जो है हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू h/3, ये जो है ट्रायंगल का h/3, बी से h/3 डिस्टेंस पर, टोटल ये जो BC डिस्टेंस है उसके बाई 3 पे लगेगा, 1.6/3 पे, तो ये ट्रायंगुलर लोड का हो गया 1/2 इंटू बेस विल बी इक्वल्स टू, ये बेस जो है 1.6 इंटू 1.6/3 इंटू ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी, टोटल जो यहाँ पर वैल्यू आई थी 78.4, ये पूरी लाइन की माइनस 17.83, हेयर यू कैन सी. So we have got bending moment from here. Now after calculating the bending moment of this slab, we will calculate factored bending moment by multiplying it with 1.5 as we do in limit state. So we have got factored bending moment. After that we will check D, as we know 0.138 sigma c के BD square वाला फार्मूला, जहाँ से हम D निकालते हैं, D निकाला तो we got it that 202 mm. we got depth 202 मीन्स इतने बेंडिंग मोमेंट के लिए 202 डेप्थ होनी चाहिए, हमने 500 प्रोवाइड कर रखा है, 440 + 60 क्लियर कवर स्मॉल डी हमने 500 कैपिटल डी प्रोवाइड किया है यहाँ पर, यानी कि 440 प्रोवाइड किया है, रिक्वायर्ड 202 है, यानी कि रिक्वायर्ड से ज़्यादा प्रोवाइड किया है, हेंस दिस स्लैब इज़ सेफ. नाउ मूविंग फर्दर, हमने डेप्थ देख लिया, अब इसी बेंडिंग मूवमेंट के लिए कितनी अमाउंट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है वो एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे, स्पेसिंग निकाल लेंगे, और देन डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ऑफ 0.12% निकाल लेंगे. मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पर AST का फार्मूला यूज़ किया बेंडिंग मूवमेंट के लिए, और स्पेसिंग निकाल ली 12 mm बार के साथ पर मीटर के लिए. देन डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकाल लिया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील से हमने 10 mm की बार लगा दी, 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इसकी आ गई. सो दिस वॉज द डिज़ाइन ऑफ हिल स्लैब. नाउ मूविंग फर्दर, हमने क्या क्या डिज़ाइन कर लिया, डिज़ाइन ऑफ स्टेम, देन डिज़ाइन ऑफ हील स्लैब. नाउ आफ्टर दिस विल गो फॉर डिज़ाइन ऑफ टो स्लैब. दिस इज़ द टो स्लैब ऑफ द रिटेनिंग वॉल. सो अब इधर वाले पोर्शन का हमें डिज़ाइन करना है, इधर वाले पोर्शन को हमने डिज़ाइन कर लिया, इसको डिज़ाइन कर लिया, अब ये वाला पोर्शन हमारा रह गया, इस पोर्शन को हमें डिज़ाइन करना है. नाउ सी, the weight of the front fill above the toe slab is neglected and the maximum moment is calculated at the face of the stem. क्या कह रहे हैं कि जो हमारा रिटेनिंग वॉल है, इस रिटेनिंग वॉल के जो फ्रंट फिल है, यहाँ पर जो मिट्टी भरी गई है ये बहुत कम होती है हाइट में, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसको मानते हैं कि यहाँ पर कोई मिट्टी का वेट नहीं आ रहा है, फर्स्ट थिंग. सो उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज कैलकुलेटेड अगेन. सो यू कैन सी हियर the maximum bending moment will be given by 92.35 into 0.85 का होल स्क्वायर WL²/2 प्लस, यहाँ से हम डायग्राम देखें वही प्रीवियस वाला अपना, अगर तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर O पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है. सो व्हाट विल डू, सी यहाँ पर इस साइड का हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो ये बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, ये जो नीचे से हमारा प्रेशर डायग्राम बना हुआ है, बस इसी प्रेशर डायग्राम की वजह से होने वाला मोमेंट, यानी कि ये इसमें दो कंपोनेंट्स आएंगे हमारे पास, कौन कौन से, एक तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा था यहाँ पर, तो ये रेक्टेंगुलर यानी यूडीएल, और ये नीचे का ट्रायंगुलर लोड ये आएगा. ठीक, ये दो कंपोनेंट आएंगे हमारे पास. सो इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है वो एक रेक्टेंगल की वजह से और एक ट्रायंगल की वजह से, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ट्रायंगल की वैल्यू निकाल ली और रेक्टेंगल की वैल्यू, और दोनों को ऐड कर लिया. ये 2/3 ऑफ डिस्टेंस पे एक्ट करेगा ट्रायंगल के सेंटर CG पे, तो ये 2/3 ऑफ बेस डिस्टेंस कर लिया हमने. यहाँ से हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल गई, इसको फैक्टराइज कर लिया 1.5 से मल्टीप्लिकेशन करके. सो वी गॉट इट हेयर. नाउ अब हमारे पास टो स्लैब में भी बेंडिंग मोमेंट मिल चुकी है. नाउ अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन दिस टो स्लैब. सो वी हैव कैलकुलेटेड यूजिंग दिस, we have calculated AST for this toe slab and have provided bars of 10 mm diameter at 100 have provided 10 mm bar diameter and have calculated distance for per meter length के हिसाब से distance निकाल लिया हमने, तो 100 mm सेंटर टू सेंटर आया इन बोथ डायरेक्शंस.
So here what we have done, we have completed all the components of our retaining wall. Means we have designed stem, we have designed heel slab, we have designed toe slab, all the components we have designed. But initially जब हम लोगों ने इसके डायमेंशंस निकाले थे, तब हमने जब चेक किया था तो हमें पता चला था कि ये वॉल जो है स्लाइड कर जाएगी, स्लाइडिंग में फेल हो रही थी. एट दैट टाइम वी टोल्ड दैट कि जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो नीचे यहाँ पर एक शेयर की प्रोवाइड करेंगे टू रेजिस्ट द स्लाइडिंग सो दैट इट विल बी सेफ. तो अब नेक्स्ट हमारा जो डिज़ाइन है दैट इज़ डिज़ाइन फॉर दिस शेयर की. ये जो शेयर की है इसको प्रोवाइड करना है अब हमें, सो दैट ये हमारी जो वॉल थी वो शेयर में भी सेफ हो जाए. फॉर दिस व्हाट विल डू, सी. सी डिज़ाइन ऑफ शेयर की. हेयर यू कैन सी हमने माना कि एक ए डेप्थ की शेयर की बनानी है. ए डेप्थ मीन्स ये इसकी डेप्थ जो है स्मॉल ए है. अब ये हमें डेप्थ फाइंड करना होगा कि कितना डेप्थ हमें शेयर में इसको रजिस्ट कराने के लिए चाहिए. सो as the shear wall is not safe in sliding, as we have already known, the shear key is to be provided here. So the pressure at the face of this shear key, अब ये जो हम shear key बनाएंगे यहाँ पर एक पैसिव अर्थ प्रेशर जनरेट होगा जो इस एक्टिव अर्थ प्रेशर के अगेंस्ट होगा. तो यहाँ पर हमने क्या किया, पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए के पी कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर निकाला 1 + sin phi अपॉन 1 - sin phi. दिस विल कम एज 3. जनरली के पी जो है के ए के अपोजिट आती है, के ए 1/3 आई थी तो के पी 3 आएगी. सो लेट्स द डेप्थ ऑफ द की बी ए. हमने मान लिया कि ये डेप्थ जो है ए होगी. तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस की विल बी, कितना शेयर रेजिस्टेंस करेगा ये, दिस विल बी इक्वल्स टू के पी इंटू दिस. यहाँ पर जो प्रेशर था पी की वैल्यू कितनी थी प्रेशर एट दिस शेयर की, 92.35, जो हम लोगों ने प्रीवियसली यहाँ पर निकाला था 92.35 एज यू कैन सी. सो के पी इंटू दिस प्रेशर पी इंटू दिस वैल्यू ए. तो ये हो गया पूरा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस शेयर की. नाउ हमारा कोडल प्रोविज़न ये है कि जो शेयर की होगी उसके लिए एक फार्मूला दिया है 0.9 टाइम्स ऑफ म्यू सिग्मा डब्ल्यू प्लस 0. दिस अपॉन पी एच. अब इस वैल्यू को हमने रखा शुड बी इक्वल्स टू 1.4. ये फार्मूला कोड में दिया हुआ है कि ये जो है शेयर की वैल्यू 1.4 होनी चाहिए. यहाँ से सारे वैल्यू सिग्मा डब्ल्यू म्यू सब कुछ रख के हमने क्या किया, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि ए की वैल्यू कितनी होगी. सो वी हैव गॉट ए एज 0.118 मीटर. एज वी हैव गॉट ए की वैल्यू हमारी 118 है, या अप्रॉक्सीमेटली 0.2 कह सकते हैं, यानी 200 mm. सो वी हैव प्रोवाइडेड ए शेयर की ऑफ 200 mm by 200 इन बोथ डायरेक्शंस एज यू कैन सो सी हेयर. हाउएवर प्रोवाइड ए शेयर की ऑफ, हमने इससे थोड़ा सा बढ़ा के शेयर की प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइड ए शेयर की ऑफ 200 mm क्रॉस 200 mm इन बोथ डायरेक्शन. सो दैट all we have done, all we have calculated the things, we have done all the designing components complete. Now we can see the reinforcement detail. Here you can see all the reinforcement details of this retaining wall. Here you can see in this figure the reinforcement details of the retaining wall. Whatsoever the dimensions we have calculated has been mentioned here, and whatsoever the reinforcements we have calculated, we have shown it in this diagram. You can go through it easily to understand all the dimensions and all the reinforcements. You can also take the screenshot of this figure so that you can draw it in your notebook. Okay, that's all. Thank you. Hope you all have understood clearly the design of retaining wall. In examination you can have the questions like designing of any single part. You could be given the sized, you could be given in examination a retaining wall. In figure you will be mentioned all its dimension and you will be asked to do the checks for its stability. Either you can be asked a question like this कि आपको क्वेश्चन में क्या होगा, एक रिटेनिंग वॉल बना के दे दिया जाएगा और उस रिटेनिंग वॉल के सारे कंपोनेंट्स, जैसे यहाँ पर ये रिटेनिंग वॉल है, इसके सारे साइजेस दे देंगे आपको और बोलेगा कि इसकी स्टेबिलिटी चेक करिए. मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस करी थी टेबल बना के, वो करना होगा. एक उतना क्वेश्चन आ सकता है, या फिर
सब कुछ दे देगा, आपसे कहेगा इस रिटेनिंग वॉल की स्टेम की डिज़ाइन करिए, मीन्स ये वाली डिज़ाइन आपको कंप्लीट करनी है, ऊपर वाला ये जो है स्टेम की डिज़ाइन करिए, चेक फॉर शेयर तक करनी है, ये बोल सकता है। अदरवाइज़ ये देगा कि आपको इस रिटेनिंग वॉल की हील स्लैब की डिज़ाइन करनी है, टो स्लैब की डिज़ाइन करनी है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये दोनों पार्ट एक साथ दे देता है, या कभी कभी सिंगल पार्ट भी डिज़ाइन करने को देता है, या इन केस बहुत किस्मत ख़राब है तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा पूरा देगा डिज़ाइन अ कंप्लीट रिटेनिंग वॉल, जो कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो बेसिकली इन एग्जामिनेशन व्हाट कम्स, रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन हमेशा पार्ट में पूछा जाता है, या तो आपसे स्टेबिलिटी एनालिसिस पूछी जाएगी, रिटेनिंग वॉल के डायमेंशन निकालने को पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो छोटा क्वेश्चन यही हो सकता है कि सारे डायमेंशन निकालिए, स्टार्टिंग में जो हमने डायमेंशन निकाले थे वहाँ तक हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये कि डायमेंशन निकालिए, साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी चेक करिए। थर्ड क्वेश्चन ये कि उसके बाद कोई एक कंपोनेंट उसके साथ में डिज़ाइन करने को दे दे, या इंडिविजुअली ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें कंपोनेंट डिज़ाइन करने को देगा, या तो स्टेम, या तो हील स्लैब, या तो टो स्लैब और शेयर की। तो इस तरीके से पार्ट्स में इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस कंप्लीट थिंग्स with this numerical. Hope you all understood the things clearly. Thank you very much. Thank you for listening carefully. Do like, subscribe and share. Thank you very much.